Question number 1. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG and LPG, the full form of CNG is compressed natural gas and the full form of LPG liquid petroleum gas. तो compressed natural gas and liquid petroleum gas के क्या फ़ायदे हैं एज अ फ्यूल यूज़ करने के? तो आंसर, the advantages of using CNG and LPG as fuels are: first, they burn with a smokeless flame and so does not cause any pollution. जब ये जलते हैं तो कोई स्मोक नहीं होता है, कोई धुआं नहीं होता है, इसलिए ये किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं. सेकेंड, दे लीव नो एश ऑन बर्निंग. जब ये जल जाते हैं तब किसी तरह का कोई ऐश नहीं बचता है, कुछ भी बाय प्रोडक्ट या कुछ भी सॉलिड राख या ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है. दे आर ईजीली टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. इनको हैंडल करना और स्टोर करना बहुत ईजी है. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड. सो आंसर, बिटुमेन, a petroleum product, is used for surfacing of road. Question number 3. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? So, answer, millions of years ago, dense forest got buried under the soil due to natural processes like storm, flood and earthquakes. These got compressed as more and more soil got deposited over them. When they got buried deep in the soil, they were exposed to very high pressure and temperature. Under these conditions, these slowly got converted into coal. This process of formation of coal from dead vegetation is called carbonization. अर्थक्वेक और फ्लड और स्टॉर्म्स जैसे नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और इनके ऊपर कंटिन्यू मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है जो अंदर दब गए हैं उन प्लांट्स के ऊपर. तो धीरे धीरे वो प्लांट्स जो दब गए हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में. सो कोल, डेड वेजिटेशन से कोल बनने की इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं. ओके. Question number 4. Fill in the blanks. A. Fossil fuel are dash dash and dash. So answers, fossil fuel are coal, petroleum and natural gas. B. Process of separation of different constituents from petroleum is called dash. So answer, refining. C. Least polluting fuel for vehicles is dash. So answer, least polluting fuel for vehicles is CNG, compressed natural gas. Question number 5. Tick true or false against the following statement. A. Fossil fuel can be made in the laboratory. So answer, false. Okay. So answer is, that statement is false. Not, we cannot prepare fossil fuel in the laboratory. B. CNG is more polluting fuel than petrol. False. CNG is less polluting than petrol. C. Coke is almost pure form of carbon. Yes, coke is the pure form of carbon. D. Coal tar is a mixture of various substances. True. Coal tar is a mixture of various substances. This statement is true. Now E. Kerosene is not a fossil fuel. False. Kerosene is a fossil fuel. Question number 6. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources.
फॉसिल्स फ्यूल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, एक्सप्लेन करना है क्यों है. सो आंसर, the process of formation of fossil fuel requires millions of years. Dead vegetation and animals that get buried deep inside the earth requires high temperature and pressure for the formation of fossil fuel, which cannot be done in the laboratory. These fossils are limited. Therefore, the use of fossil fuel at a rapid rate will lead to their exhaustion. फॉसिल्स फ्यूल्स के बनने की जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, कई सालों में ये बनकर तैयार होता है. ठीक है, और बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर होता है, जो कि हम लैब में पॉसिबल नहीं है. लैब में हम इसको नहीं बना सकते हैं, और अगर हम इसको बनने में कई करोड़ों साल लगते हैं. इसलिए अगर हम इनका कंटिन्यू यूज़ करते रहे तो हो सकता है ये एक दिन ख़त्म भी हो जाए. इसीलिए फॉसिल्स फ्यूल को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक. सो आंसर, यूजेज और आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं. आंसर है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक है, कोक इज अ टफ, कोक इज अ पोरस, कोक इज अ ब्लैक इन कलर. ओके, सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हम देखते हैं यूजेस. सो यूजेस, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कोक का यूज होता है. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करना है. तो चलिए देखते हैं. आंसर, डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इन द सी millions of years ago got covered with layers of sand and clay. Due to the lack of air, high temperature and high pressure, these dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो सी के अंदर जो जितने भी एनिमल्स सी के अंदर रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो सीधा बॉटम में जाकर जमा हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे इन एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर क्ले और सैंड जमा होती जाती है, और धीरे धीरे बहुत जो डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट ज़मीन के नीचे हैं, सी के नीचे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से वहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में. एयर भी वहाँ नहीं मिल पा रही है क्योंकि एयर की भी बहुत ज़्यादा कमी है. तो जितना भी आपका डेड वेजिटेशन था, डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, वो सारे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में एक टेबल आपको दिया हुआ है. उसमें 1991 से लेकर 1997 तक के ईयर्स दिए हैं. ठीक है, और इन ईयर्स में पर ईयर कितना पावर स्टोरेज हो रहा है उसका परसेंटेज भी दिया है. तो हमें ईयर्स और पावर स्टोरेज का जो परसेंटेज है उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो ये उसका आंसर है और ये आपका ग्राफ है.